Hello everyone, welcome to all. And today we are going to discuss about this is the fourth session, and we will be discussing about the sequence stratigraphy. I think three sessions have already been completed. You have seen that the first session it was I just took the feldspar group, mineral group. The second session was structural geology, where we covered the superimposition of fold, and third session is the metamorphic petrology, where ACF, AKF, and projection diagrams were covered. So today's session is this is 30th, and we are going to continue the fourth session, that is sequence stratigraphy. And we have decided this topic because we think it is also included in GSI also, and those students who are preparing for this GSI means this time also they will be getting help from this this session. Okay, so in this session I will not be covering the full stratigraphy, because sequence stratigraphy, because it is quite difficult to sum up all over the concepts, all the concepts in one go. Okay, so it will be like a 2 3 maybe more than 3 hours class. So I'll be trying to explain some basic things on the basis of which you will be able to understand the sequence stratigraphic concepts, and you will understand by yourself. Okay, if you are going through any research paper, I will just give that research paper link also, or I will share the PDF in the group. So after just going through that PDF, you will be able to understand what I am trying to explain. Okay, so this is the fourth session, sequence stratigraphy. Then we will continue the fifth, sixth, and total 12 sessions are there. Okay, and these are very important. We have selected these things, and today we are going to explain the sequence stratigraphy. Okay, okay, sequence stratigraphy. So you can see this is one research paper from Octavia Cattaneo. He is the author. He is very like अप्लाइड सेडिमेंटोलॉजी में ऑक्टावियो कैटेनियो बहुत ही ज़्यादा नाम है, ठीक है ना. एंड राइट नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी, क्या है और क्यों इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, व्हाट आर लाइक इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स, ये सब देखेंगे यहाँ पर. द थीम इज़ लाइक दैट ओनली. यू कैन सी सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी ऑफ क्लास्टिक सिस्टम, कॉन्सेप्ट, मेरिट्स एंड पिटफॉल्स. ठीक है ना, उसका क्लास्टिक सिस्टम. अभी देखो सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी जो चीज़ है, इट कैन बी अप्लाइड टू ए वेरियस नंबर ऑफ environment and even different tectonic settings में we can utilize the sequence stratigraphy, and sequence stratigraphy in particular environment they will be very different from one another. Okay, so what are the concepts and what is the merit and what are the pitfalls? We'll just look only these things. So sequence stratigraphy is widely embraced as a new method of stratigraphic analysis by both academic and industry क्या लिखा हुआ है, practitioners जो भी पार्टिसिपेट करते हैं एकेडमिक में भी एंड इंडस्ट्री में भी, उसका इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है. इट इज़ न्यू मेथड हैज़ कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड आवर इनसाइट इनटू हाउ सेडिमेंट्री बेसिन्स अक्यूमुलेट एंड प्रिजर्व सेडिमेंट्स. ऑल ऑफ यू नो दैट सेडिमेंट्स, अभी जो नॉर्मली लॉ ऑफ हॉराइजॉन्टलिटी जो था, इफ दिस इज वन सेडिमेंट्री बेसिन्स देन सेडिमेंट्स विल बी ट्रांसपोर्टेड, दे विल बी गेटिंग इरोडेड. ठीक है ना, वेदरिंग एंड इरोजन यहाँ पर होगा, देन दे विल बी कमिंग एंड दे विल बी डिपॉजिटेड ओवर हियर. डायजेनेसिस लिथिफिकेशन होने के बाद दे विल फॉर्म वन स्ट्रेटा. ओके, so ये sediment आ कहाँ रहे से, what the sediments are coming, and if they are making some accumulation in a basin, because basin होगा तभी जाके वहाँ पे sediment deposit होंगे. हैं inside how sedimentary basins accumulate and preserve sediments वहाँ पे preserve होता है, diagenesis lithification होता है, तो what the various physical and chemical parameters that is getting changed. ठीक है ना, and has become a highly successful exploration technique in the search of natural resources. In natural resources means here it is focusing only on this oil and natural gas. ठीक है, the different sequence stratigraphic models that are currently in use, there are three variety of depositional sequence, genetic stratigraphic sequence and transgressive regressive sequence. अभी देखेंगे कि sequence stratigraphy में sequence क्या क्या हो सकता है, different type of stratigraphy में कितना sequence stratigraphy, types of sequence stratigraphy भी वहाँ पर हम देख सकते हैं. ठीक है, so and all have merits and limitations. You can see यहाँ पर लिखा हुआ है कि that the different sequence stratigraphic models means there are so many number of sequence stratigraphic models will be there, and they will be restricted to particular environment. Okay, so each model works best in particular tectonic setting, I just explained, and no one model is applicable to the entire range of case studies. It is also okay. Flexibility is thus recommended for choosing the model that is the best match for a specific project. Packaging of the same succession of strata. ठीक है, अभी तक यहाँ पर कहीं पर कुछ दिक्कत नहीं आया होगा आई थिंक. उसके बाद देखते हैं सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफिक मॉडल्स आर सेंटर्ड अराउंड वन कर्व ऑफ बेस लेवल फ्लक्चुएशन दैट डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन अकोमोडेशन एट द सोर्स लाइन. देखो इसमें थोड़ा व्हाई आई एम टेकिंग दिस वन, बिकॉज यहाँ पे पहले एब्स्ट्रैक्ट को समझेंगे
कि व्हाट ये पेपर में क्या एक्चुअली दिया गया है। सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफिक मॉडल्स आर सेंटर्ड अराउंड वन कर्व of base level fluctuations. What is base level fluctuation? It is important that describe ये जो base level fluctuation, this describes or explains the changes in accommodation at the source line. I have told you that in this session I'll be explaining overall the concepts of transgression, regression and phases associations, phases models, and then we'll go to the concept of accommodation space creation. ठीक है ना। इन अकोमोडेशन एट द सोर लाइन सबको पता है क्या है, समंदर का वो जो लाइन है जिसको सोर लाइन बोलते हैं। द इंटरप्ले बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड दिस कर्व ऑफ बेस लेवल चेंज controls the transgressive regressive shift of the soul line. Remember, when we are talking about transgression regression, तो ट्रांसग्रेशन रिग्रेशन बेसिकली होता क्या है। ट्रांसग्रेशन रिग्रेशन दिस इज रिलेटिव सी लेवल राइज, ठीक है ना, रिलेटिव सी लेवल राइज। इसको जो ये जो क्लास्टिक सिस्टम बताया गया है ना, तो इसको हम मेरीन केस में यूज करेंगे, सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी कैन बी यूटिलाइज्ड इन केस ऑफ लैंड ऑल्सो, ठीक है ना। अभी ये दिमाग में मत रखना कि सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी सिर्फ और सिर्फ मेरीन केस में होगा। मेरीन केस में सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी का जितना भी चीज़ें हैं वी कैन एक्सप्लेन इजीली, जो हमें दिख रहा है, ठीक है ना। लैंड केस में इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ प्रोमिनेंट, इसीलिए लैंड पार्ट में उसको थोड़ा कम किया जाता है। एंड अनदर थिंग दैट सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी ऑफ क्लास्टिक सिस्टम यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी ऑफ कार्बोनेट्स और कार्बोनेट सिस्टम ये भी हो सकता है, ठीक है ना। क्लास्टिक सिस्टम में क्या, अभी हम इसमें क्या सैंडस्टोन रिलेटेड चीज़ों को बताएंगे, ठीक है ना, जहाँ पे तुम्हारे क्लास्टिक सेडिमेंट्स आ रहे हैं। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज क्लास्टिक सेडिमेंट, आई होप, ठीक है। सो देखो, this curve of base level change controls the transgressive and regressive shift of the soul line as well as the timing of all system tract. अभी system tract क्या है and sequence boundaries क्या है, तो ये सब चीज़ें before diving into the sequence stratigraphy then we must have clear idea about these terminologies. These are very important terminologies, ठीक है। surfaces that serve at least in part as system tract boundaries are sequence stratigraphic surface. sequence boundary क्या है, system tract क्या है, system और stratigraphic surfaces क्या है, sequence stratigraphic surfaces क्या है, ठीक है। system tract boundaries have low diachronarity rates along variation in subsidence and sedimentation rate. Then what is subsidence rate, what is sedimentation rate, what is the sea level rise? sea level rise अगर करेगा तो what are the parameter that is controlling the sea level changes, ठीक है ना। These surfaces may be more, अच्छा ये तो पढ़ लिया। This paper presents the fundamental, इसको छोड़ दो, हो गया। अभी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। Here you can see this is important definitions sequence stratigraphy. So sequence stratigraphy को define कैसे करेंगे। sequence stratigraphy you can see here it is written, sequence stratigraphy the study of rock relationship with a time stratigraphic framework of repetitive genetically related strata bounded by surface of erosion or non-deposition or their correlative conformity, ठीक है ना, correlative conformity। तो यहाँ पर मुझे चलो एक स्टोरी बता देता हूँ ओवरऑल सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी क्या है, उसके बाद हम जाएंगे दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी गिवन बाय वेरियस ऑथर्स, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या होता है कि सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी इन केस ऑफ मेरीन के केस में मैं बता रहा हूँ, सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी इन मेरीन केस उसको मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिस इज योर लैंड पार्ट, ठीक है, ये समंदर है, दिस इज योर ओशियन, ठीक है, एंड दिस इज द सोल लाइन। अगर इसको 3D में बनाओगे तो ऐसे ऐसे आ जाएगा, दिस इज द सोल लाइन, ऐसे समंदर ऐसे है, चलो ठीक है, दिस इज द ओशियन। तो अभी दिक्कत ये है कि दिस इज द लैंड पार्ट, दिस इज द वाटर, ओके, दिस इज द सोल लाइन, ठीक है ना, दिस इज द सोल लाइन। अभी द थिंग इज दैट from this land part sediments will be getting transported, अभी इरोजन होगा, इरोजन होके ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्ट होके they will be getting deposited over here, ठीक है ना, यहाँ डिपॉजिट होंगे। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि this process is the same with respect to time, बताओ। the rate of sedimentation is different,
है कि नहीं? द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज डिफरेंट, द रेट ऑफ इरोजन इज वेरी डिफरेंट। एंड यहाँ पर इफ द सी लेवल ये थोड़ा बढ़ जाता है, अभी सी लेवल बढ़ जाएगा तो यहाँ पे इट इज क्रिएटिंग मोर स्पेस, इट इज क्रिएटिंग मोर अकोमोडेशन स्पेस। अभी मैं बोलूंगा सर यहाँ पर आ गया, तो नाउ इट इज क्रिएटिंग मोर अकोमोडेशन स्पेस, ठीक है ना? तो यहाँ पर तीन चार चीजें मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट द सी लेवल चेंज हो रहा है, सी लेवल चेंज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। थर्ड थिंग, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, द एकोमोडेशन स्पेस क्रिएशन, एकोमोडेशन स्पेस क्रिएशन कितना हो रहा है। देन थर्ड थिंग, यू स्टैटिक चेंजेस हो रहा है क्या, इफ टेक्टोनिक चेंजेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कहीं सुनामी हो गया तो ये अगर लैंड पार्ट, ये जो है द फ्लोर ऑफ द ओशन, ये अगर ऊपर आ रहा है देन तुम्हारा सी लेवल चेंजेस भी होगा, ठीक है ना? तो यू स्टैटिक चेंजेस उसको बोलते हैं यू स्टैटिक, सॉरी दिस इज नॉट यू स्टैटिक, दिस इज कॉल्ड योर टेक्टोनिक, टेक्टोनिक फोर्सेस, ठीक है, और टेक्टोनिक एक्टिविटी बोलो। अभी यू स्टैटिक क्या है, दिस इज द ओवरऑल ग्लोबल वाटर वॉल्यूम, ग्लोबल वाटर वॉल्यूम दैट ऑल्सो मैटर्स, ठीक है ना? रेट ऑफ तुम्हारा अभी ग्लेशिएशन डीग्लेशिएशन कितना हो रहा है, तो सी लेवल चेंजेस होगा, तो सेडिमेंटेशन होगा, अकोमोडेशन स्पेस होगा। तो फिर दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, ओके। अभी उसके आगे थोड़ा जाते हैं, आगे क्या होता है कि इफ आई एम सिंपली सेइंग कि सी लेवल मेरा अभी यहाँ है, तो ऐसा हो सकता है कि सर ऊपर आ सकता है, नो इशू, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस, और दिस इज द सेकंड फेज। थर्ड फेज में यहाँ आएगा, फोर्थ फेज में और ऊपर आएगा, देन फिफ्थ पेज में और नीचे भी आ सकता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ द सी लेवल का राइज एंड फॉल, सी लेवल का राइज एंड फॉल, दिस इज वन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना? एक साइक्लिक प्रोसेस होगा, उसका एक कर्व भी है, वो कर्व हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? ना ये जो साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, नाउ दिस साइक्लिक प्रोसेस इज हैपनिंग, एंड when this cyclic process is happening, then how the sediments are getting deposited, how the sediments are getting deposited and they are being preserved। अगर sediment deposit हो गया and preserve नहीं हुआ, then that is of no use, हमें कोई सिग्नेचर ही नहीं मिलेगा। तो वो इरोजन होके डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन होने के बाद इफ दे आर बीइंग प्रिजर्व्ड, तभी तो हम उसको स्टडी कर पाएंगे, ठीक है ना? तभी तो हम उसको स्टडी कर पाएंगे, नहीं तो हम स्टडी कैसे करेंगे? तो अभी ये इफ इट इज वन साइक्लिक प्रोसेस, तो मैं बोल रहा हूँ कि सी लेवल यहाँ ऊपर आ गया एक बार, दिस इज द फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज में सी लेवल नीचे चला गया, ठीक है। अभी फर्स्ट से सी लेवल राइज से सी लेवल फॉल तक ये एक सीक्वेंस बनाएगा, ये एक पैकेज बनाएगा, पैकेज ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है ना? तो इसमें जो सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे, हाउ दे विल बी डिपॉजिटेड, ठीक है। अभी यहाँ पर जो सेडिमेंट डिपॉजिट होगा एंड इसके बारे में जो कर्व हम देखेंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दे हैव टेकन टू थिंग्स। व्हाट आर द टू थिंग्स? वन इज सी लेवल राइज एंड अनदर इज रिलेटिव सी लेवल राइज, ठीक है। एंड इन दिस रिलेटिव सी लेवल राइज दे हैव टेकन द सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है ना? सेडिमेंटेशन रेट। मुझे बताओ, ये तुम्हारा लैंड पार्ट है, तो ये तुम्हारा ओशियन है, ठीक है ना? ओशियन है। अगर यहाँ पे सेडिमेंट्स ज़्यादा हुए, अगर सेडिमेंट यहाँ पर ज़्यादा हो गए तो ये बढ़ जाएगा, है ना? अभी तुम्हारा इतना ही, इतना तुम्हारे पास वॉल्यूम है। वो वाला स्टोरी सुने हो ना, कौवा वाला? देन ही जस्ट ड्रॉप्ड सो मेनी ऑफ स्टोन्स, ड्रॉप्ड सो मेनी ऑफ स्टोन, देन द वाटर लेवल इंक्रीज्ड, उसके बाद देन द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली। ऐसे सुने हो कि नहीं? तो सेम चीज़। तो यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव सी लेवल राइज में दे हैव टेकन द सेडिमेंटेशन रेट एज वेल एज द सी लेवल राइज, सी लेवल राइज कर रहा है एंड व्हाट इज द सेडिमेंटेशन रेट, एंड नाउ दे हैव डिस्कार्डेड और दे डिड नॉट इंक्लूड सम अदर फैक्टर्स जो कि उसको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना? तो ओवरऑल ये तुम्हारा सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी का कॉन्सेप्ट है।
मैं बता रहा हूँ कि सी लेवल राइज से सी लेवल राइज से सी लेवल फॉल तक यहाँ पर जो भी पैकेज ऑफ सेडिमेंट्स, तो एक सीक्वेंस बाउंड्री में रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये फिर से बढ़ेगा तो फिर से एक सेडिमेंट पैकेज बनेगा, फिर से घटेगा, यहाँ सेडिमेंट पैकेज बनाएगा। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस में सी लेवल राइज एंड फॉल हो रहा है, how many numbers of sea level rise, sea level fall हुआ है, we can we can get some insight from the sediments। जो sediments वहाँ पर रहेंगे तो उनको स्टडी करके we can get some inferences about what might have happened in the past and what is the number of, or what is the frequency of change in sea level। ओके, एंड यहाँ पर प्रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है। the sediment package they should be preserve होना बहुत ज़रूरी है। okay, all of you are getting what I am trying to say? Yes sir. चलो, very good, सर मेरा एक क्वेश्चन है very good। कि वो मतलब पता कैसे चलता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक वो एक साइकिल मतलब कंप्लीट हो चुकी है? ये सब बाद में आ- I will be explaining। okay, अच्छा यहाँ पर ठीक देखो, है फिर भी if ठीक you है have curious about then let me show you। यहाँ पर हम पहुँच नहीं पाएंगे आई थिंक। देखो यहाँ पर देखो दिस एनिमेशन, ठीक है ना, दिस इज द केस, है कि नहीं, दिस इज द केस। उसके बाद सॉरी, उसके बाद देखो सेडिमेंट ऊपर से आया, देन दे गॉट डिपॉजिटेड, यहाँ पर भी डिपॉजिट कुछ हुआ, यहाँ पर भी कुछ डिपॉजिट हुआ, फिर से डिपोजिशन फिर से इंक्रीज किया। उसके बाद क्या हुआ कि ये पूरा ऊपर बढ़, तो यहाँ पर एक सरफेस बन गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर से बढ़ा, फिर से बढ़ा, देखो मैक्सिमम फ्लडिंग सरफेस, यहाँ पर तुम्हारा सी लेवल मैक्सिमम पीक हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से मैक्सिमम फ्लडिंग सरफेस के बाद और थोड़ा इंक्रीज हुआ, तो ये सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ। अभी देखो यहाँ पर रिलेटिव सी लेवल कहाँ है, यहाँ है, तो ये फॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैकेज को हमें देखना पड़ेगा, ये सब पैकेज को देखना पड़ेगा। देन ये ओवरऑल यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज रिटन हाई स्टैंड सिस्टम ट्रैक्ट, ट्रांसग्रेसिव सिस्टम ट्रैक, लो स्टैंड सिस्टम ट्रैक। तो सिस्टम ट्रैक, कौन से सिस्टम ट्रैक में कौन सा पैकेज डिपॉजिट हुआ है। अभी ये नाउ दिस क्वेश्चन कम्स कि सर हाउ यू विल नो दैट दिस इज वन characteristic feature of or this sediment package which have been deposited or preserved, they are the signature of this HST, high strand system tract। कैसे पता चलेगा? और ये दीज आर TST, ट्रांसग्रेसिव सिस्टम ट्रैक्ट, कैसे पता चलेगा? LST कैसे मतलब हाउ विल नो, है ना। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए दिमाग में। देखो उसके बाद ये है तुम्हारा पैकेज, सेडिमेंट्स तो होंगे वहाँ पे, सेडिमेंट पैकेज है ना, सेडिमेंट पैकेज होंगे। यहाँ पर देखो दिस इज LST, लो स्टैंड सिस्टम ट्रैक, LST FSS, ठीक है ना, फॉलिंग स्टेज सिस्टम ट्रैक। तो ये जो चीज़ है ना, अभी इसको हम कैसे पता चल रहा है, दैट विल कम फ्रॉम द स्ट्रैटल टर्मिनेशंस, ठीक है ना। स्ट्रैटल टर्मिनेशंस में इसको हम देखेंगे, ये डाउन लैप है, ये तुम्हारा ऑन लैप है, कहीं पे क्लाइनोफॉर्म है, कहीं पे तुम्हारा ऑफ लैप है। तो दीज आर द स्ट्रैटल टर्मिनेशंस, जिसको हम देख के पता कर सकते हैं कि ओके सर ये जो सरफेस है, ये सरफेस हमारा TST हो सकता है, ट्रांसग्रेसिव सरफेस हो सकता है, और ये हमारा LST हो सकता है, लो स्टैंड सिस्टम ट्रैक का हो सकता है, और दिस इज फ्रॉम MFS, मैक्सिमम फ्लोटिंग सरफेस। So in this I'm just telling you the short forms, if you are not that much of familiar। तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, I will try to make you familiar with these terminologies, ठीक है। उसके बाद एंड अनदर थिंग इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी ना, दिस सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी, अभी मुझे कोई बताओ कि इफ आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस ऑन लैब्स, ये ऊपर रहे तो ये सब ऑन लैब्स हैं, ठीक है ना। तो दीज ऑन लैब्स हु हैव दिस, ये सब डिपॉजिट हुआ है, वेदर दीज ऑन लैब्स आर टाइम सिंक्रोनस। तो ये क्या करता है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है क्या, मतलब एक ही टाइम में ये डिपॉजिट हुआ है करके हम बता सकते हैं, तभी जाके तो हम इसको एक ही पैकेज में ले रहे हैं, है ना। तो हमेशा याद रखना दिस थिंग्स आर टाइम सिंक्रोनस, सो दैट
सेस्मिक डेटा देखे हो कहीं? सेस्मिक डेटा, सेस्मिक रिफ्लेक्शन डेटा, सेस्मिक रिफ्लेक्शन डेटा में ये सब चीज़ें रहते हैं। एंड दिस सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी कैन बी, सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी कैन बी नहीं, दिस इज मस्ट। सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी स्टडी करने के लिए यू नीड सेस्मिक स्ट्रैटिग्राफी, एंड सेस्मिक स्ट्रैटिग्राफी आर ऑल्सो टाइम सिंक्रोनस। ठीक है ना, सेस्मिक स्ट्रैटिग्राफी में जो तुम्हारा सेस्मिक का ट्रेस मिलता है, दोज आर ऑल्सो टाइम सिंक्रोनस। ओके, नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसा क्वेश्चन पूछते रहो, मुझे भी अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं, सॉरी पीछे चलते हैं जहाँ पर हमारा क्लास चलेगा। यस, हाँ यहाँ थे। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं यहाँ पर यू कैन सी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। द ऑब्जेक्टेड एंड क्रिटिसाइज इज यूस्टेसी ड्रिवन सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी एंड टेक्टोनिज्म ड्रिवन सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों मतलब क्या बोलते हैं, दीज आर द टू proposed theories, क्योंकि टेक्टोनिज्म भी इट कैन अफेक्ट द सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना जो भी है। अभी सीक्वेंस बाउंड्री क्या है, सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी या इसका डेफिनेशंस देखो। ठीक है, एक मिनट। ओके, then sequence stratigraphy. Sequence stratigraphy is the study of rock relationship with a time stratigraphic sequence. This is the actual definition. Sequence stratigraphy is the study of a rock relationship. यहाँ पर rock relationship दिया गया है, you can simply say as a sediments also. ठीक है ना, within a time stratigraphic framework. Time stratigraphy, I also told these are time synchronous. ठीक है, of a repetitive का मतलब क्या है, अभी देखो ये साइकिल जैसे होगा, अगर साइकिल हुआ तो रिपीटेशन होगा ही। रिपीटेटिव, जेनेटिकली रिलेटेड मतलब एक ही जीन से आया हुआ है, मतलब दिस हैज डिपॉजिटेड इन वन फ्रेम इन द सेंस एक ही टाइम में एक ही प्रोसेस से वो डिपॉजिट हुआ है। मे बी दिस माइट नॉट बी सेम एज दिस और दिस, बट ये दोनों सेम है, जेनेटिकली दे आर रिलेटेड। ठीक है ना, मतलब एक ही पिता के बच्चे हैं, सॉरी दिस इज अ वेरी फालतू एग्जाम्पल, बट स्टिल जेनेटिकली रिलेटेड स्ट्राटा बाउंडेड बाय surfaces of erosion and non deposition। ये जो surfaces of erosion and non deposition, इसको तुम unconformity भी बोल सकते हो। ठीक है ना, unconformity भी बोल सकते हो, but these are not unconformity, these are conformity surfaces। ठीक है, और दे आर कोरिलेटिव कन्फर्मिटीज। उसके कोरिलेटिव कन्फर्मिटीज जो होंगे यही है कोरिलेटिव कन्फर्मिटी। तो ये होते हैं जो मैंने बताया, वहाँ पे हाई स्टैंड से लो स्टैंड आ गया। ठीक है, सी लेवल ऊपर से नीचे आ गया, तो वट एवर द पैकेज दे गॉट डिपॉजिटेड ओवर हियर ना, वट एवर द पैकेजेस दे जस्ट गॉट डिपॉजिटेड ओवर हियर, तो उसके बाद क्या होगा, ऐसे सर्फेसेस आ जाएंगे। चलो यहाँ से यहाँ तक एक ही पैकेज है, तो दिस इज द लोअर बाउंडिंग सर्फेस, दिस इज द अपर बाउंडिंग सर्फेस। तो पैकेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये सर्फेसेस से ही डिफाइन करेंगे ना। ठीक है ना, दोज आर कॉल्ड सीक्वेंस बाउंड्रीज। उसके बाद डिपोजिशनल सिस्टम। डिपोजिशनल सिस्टम क्या है, दिस इज वन 3D assemblages of process related phases that record major paleogeomorphic elements। एक ही एरिया में डिपॉजिट तो होंगे एक ही टाइम में, दोज आर कॉल्ड योर डिपोजिशनल सिस्टम। एंड सीक्वेंस is a relatively conformable succession of genetically related strata bounded by unconformities or their correlative conformities। correlative conformity को CC बोलते हैं। ठीक है, this is also very important। system tract क्या है, this is a linkage of contemporaneous depositional system forming the subdivision of a sequence। these are called system tract। high strand system tract, low strand system tract, फॉलिंग स्टेज सिस्टम ट्रैक FSST। ठीक है ना, देन पारा सीक्वेंसेस क्या है, सीक्वेंस के नीचे सीक्वेंसेस को अगर सब डिविजन करोगे, दोज आर योर पारा सीक्वेंसेस। दीज आर रिलेटिवली कंफर्मेबल सक्सेशन ऑफ जेनेटिकली रिलेटेड बेड्स और बेड सेट्स बाउंडेड बाय फ्लोटिंग सरफेस। MFS मैक्सिमम फ्लोटिंग सरफेस, MRS मैक्सिमम रिग्रेसिव सरफेस, इन दोनों के बीच में जो होगा दैट इज वन पारा सीक्वेंस।
and para sequence may be anything from TR sequence. What is TR sequence? T is a transgressive regressive sequence. Transgressive regressive sequence. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड डोंट बदर. ठीक है, चीजें धीरे धीरे समझ आएगी. टिल नाउ इन डाउट? अभी तक कुछ डाउट आया है? बताओ. No doubt from my side, ma'am. ओके, डिपोजिशनल सिस्टम, सिस्टम चार्ट एंड सीक्वेंस, ये सब वहाँ पर लिखा गया है, यू कैन सी. ठीक है, उसके बाद आई थिंक आई विल शो यू एक्चुअली इस पेपर में जो लिखा हुआ है उसको अगर हम दिखाएंगे. व्हाट इज दैट? PDF. यस, रेडिमेंट्री बाय गैरी निकोल्स को भी पढ़ लेना थोड़ा बहुत. ठीक है, इन दिस केस इसका इंट्रो में ये देखो जो लिखा गया है, सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, डेफिनेशन, बेस लेवल चेंजेस, ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन. आज हम ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन तक है हमारा चीज़ें कवर अप करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखो हियर बेस लेवल क्या है, बेस लेवल चेंजेस क्या है, ट्रांसग्रेशन रिग्रेशन, हाउ दिस ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन इज चेंजिंग बेस लेवल. ठीक है, अभी बेस लेवल को MSL बोल सकते हो, तो मीन्स लेवल भी बोल सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं. देन स्ट्रैटिग्राफिक सरफेसेस. स्ट्रैटिग्राफिक सरफेस में आएगा क्या? टाइप्स ऑफ स्ट्रेटल टर्मिनेशन, ऑन लैप डाउन लैप जो भी बताया था, दीज आर टाइप ऑफ स्ट्रेटल टर्मिनेशंस. स्ट्रेटल टर्मिनेशन मतलब स्ट्रेटा कहाँ पे जाके बंद हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, दोज आर कॉल्ड स्ट्रेटल टर्मिनेशंस. ठीक है, सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफिक सरफेसेस. सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफिक सरफेस में क्या आएगा? सॉवेरियल ऑन कन्फर्मिटी. Sawvarial unconformity, this is called SU, Sawvarial unconformity. And I have told you that this sequence stratigraphy concept can be utilized in case of marine and in case of land also. And this Sawvarial unconformity is restricted to the land part. ठीक है ना? Sawvarial unconformity, हाँ, Sawvarial unconformity and correlative conformity, CC, SU and CC, ये दोनों हम डायग्राम में भी देखेंगे. ठीक है, एंड बसल सरफेस ऑफ फोर्स रिग्रेशन, इसको बोलते हैं BSFR, बसल सरफेस ऑफ फोर्स रिग्रेशन. वहां पे देखेंगे रिग्रेशन, ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन. रिग्रेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल रिग्रेशन, एक होता है फोर्स रिग्रेशन. ठीक है ना? अभी रिग्रेशन क्या है, यहाँ पर 3-4 चीजें हैं जिसमें ज्यादातर कन्फ्यूजन आएगा, और कन्फ्यूजन आना भी जरूरी है. एक है कॉन्सेप्ट ट्रांसग्रेशन, रिग्रेशन. ठीक है ना, ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन. दूसरा है क्या है? प्रोग्रेडेशन एंड रेट्रोग्रेडेशन. ठीक है, तीसरा है ट्रांसग्रेशन, रिग्रेशन हो गया, प्रोग्रेडेशन. उसके बाद ये जो रिग्रेशन में दो तरीके के हैं, नॉर्मल रिग्रेशन, फोर्स रिग्रेशन. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? फाइनिंग अपवर्ड, कोर्सनिंग अपवर्ड. फाइनिंग अपवर्ड सीक्वेंस और कोर्सनिंग अपवर्ड सीक्वेंस. क्योंकि जब सेडिमेंट डिपॉजिट होगा, इफ आई विल सिंपली से कि ये हमारा ओशियन है, ठीक है, मेरीन केस है, ये लैंड पार्ट, सॉरी दिस इज द लैंड पार्ट. तो यहाँ पे अगर सेडिमेंट हम डिपॉजिट करवाएंगे, इफ इरोजन होके सेडिमेंट्स आर कमिंग, तो सेडिमेंट यहाँ पर जो डिपॉजिट होंगे, तो मुझे बताओ एट दिस पार्ट, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा जेंटल कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज ऐसे ही धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है. तो मुझे बताओ कि इन दिस एरिया जो सेडिमेंट डिपॉजिट होगा, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सेडिमेंट डिपॉजिटेड हियर. यहाँ पे जो सेडिमेंट डिपॉजिट होगा उसका कैरेक्टर अलग होगा, एंड यहाँ पे उसके नीचे जो सेडिमेंट डिपॉजिट होगा उसका कैरेक्टर भी अलग होगा. अलग होगा, इसमें सहमत हो कि नहीं? whether all of you are agree or not? Yes, sir. Yes, sir. एग्री, ओके. देन और ये नीचे और भी जाएगा, नीचे इसमें कुछ दूसरा ही सेडिमेंट, दूसरा ही है, कोई दूसरा सेडिमेंट है. तो नाउ ये क्यों? बिकॉज इन ओशियन और मेरीन केस में तुम्हारा एनर्जी का कंडीशन अलग है. एनर्जी का जो कंडीशन है यहाँ पे हाई एनर्जी रहेगा. ठीक है ना, हाई एनर्जी. देन फर्दर द एनर्जी दैट विल बी डिक्रीजेस. हियर आई एम एक्सपेक्टेड टू गेट, इफ इट इज कार्बोनेट्स भी है वहां पर, देन आई विल बी गेटिंग लाइमस्टोन, है ना. यहाँ पे आई विल बी गेटिंग क्लास्टिक सेडिमेंट्स. क्लास्टिक सेडिमेंट्स मीन सैंडस्टोन.
रेत मिलेगा यहाँ मुझे, है कि नहीं? आर यू एग्री विथ मी? Yes, sir. ओके, अभी दिस इज द केस, दिस इज द केस। उसके बाद इफ सी लेवल इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, देन ये जो हाई एनर्जी एनवायरनमेंट एंड लो एनर्जी एनवायरनमेंट, हम ये दोनों को कंसिडर करते हैं, ठीक है? इफ द लेवल ऑफ सी लेवल इज राइजिंग, देन दिस, ये जो हाई एनर्जी एनवायरनमेंट जो है ये आगे शिफ्ट करेगा। मतलब यहाँ अगर हमें सैंड मिल रहा था, तो अभी इफ सी लेवल इज हियर, देन हमें सैंड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना? स्लोप तो सेम ही है, तो यहाँ हमें लाइमस्टोन मिलेगा, फाइन ग्रेन रॉक, ठीक है कि नहीं? ओके, अरे हाँ ना बोलो कुछ। Yes, हाँ sir. हाँ, सर। उसके बाद क्या होगा कि ये हो गया, खत्म हो गया। देन इफ आई एम टेकिंग वन कोर हियर, यहाँ पे मैं एक कोर ले रहा हूँ, तो ये तो अभी सैंडस्टोन के आजू बाजू में है, तो ये सैंडस्टोन जैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको सैंडस्टोन ले लेते हैं। अभी सैंडस्टोन के ऊपर हमें फाइन ग्रेन रॉक मिल रहा है, ठीक है ना? बिकॉज मैंने बोला दिस इज वन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में तो कभी हाई स्टैंड है, लो स्टैंड है, तो पूरा ऐसे पैकेज डिपॉजिट होता रहेगा, है ना? तो फ्रॉम दिस कोर आई कैन सिंपली टेल दैट कि अगर नीचे कोर्स ग्रेन्ड है और ऊपर फाइन ग्रेन्ड है, इफ नीचे कोर्स ग्रेन्ड है एंड ऊपर फाइन ग्रेन्ड है, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे ट्रांसग्रेशन या फिर सी लेवल राइज हुआ होगा, तभी जाके ये जो लो एनर्जी कंडीशन ये ऊपर आया है, नहीं तो ये तो नीचे था ना यहाँ पर। वेदर माई ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट और नॉट, ये बताओ। Correct, sir. वेरी गुड, थैंक यू। चलो, मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, प्रोग्रेडेशन रेट्रोग्रेडेशन उसमें थोड़ा दिक्कत आएगी, ट्रांसग्रेशन रिग्रेशन उसमें दिक्कत आएगी, कोर्शनिंग अपवर्ड फाइनिंग अपवर्ड उसमें थोड़ा दिक्कत आएगी। तो उसको याद रखने के लिए भी छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्मूला हम बता देंगे, ठीक है ना? ताकि एग्जाम में तुम्हें सोचने के लिए टाइम ना, मतलब यू डोंट नीड टाइम एंड यू विल नॉट गेट टाइम टू थिंक। ओके, देखो, कोरिलेटेड कॉन्फॉर्मिटी, बेसल सरफेस ऑफ फोर्स रिग्रेशन, इफ यू आर लाइक, ये सब चीज़ों को लिख लो, ठीक है? बेसल सरफेस ऑफ फोर्स रिग्रेशन BSFR बोलते हैं उसे, क्योंकि आगे जाके जो टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि आई विल बी एक्सप्लेनिंग ओनली द शॉर्ट फॉर्म्स। ओके, मैक्सिमम रिग्रेसिव सरफेस MRS, ठीक है? मैक्सिमम रिग्रेसिव सरफेस, दिस इज MRS। मैक्सिमम फ्लोटिंग सरफेस MFS। रिवाइनमेंट सरफेस, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? देन विद इन ट्रेंड फेसिस कॉन्टैक्ट। अभी ये जो फेसिस मॉडल जो मैं बताया, ये फेसिस मॉडल बेसिकली है क्या? अभी मैंने जो बताया ना, यहाँ पे हमारा फाइन, यहाँ पे कोर्स ग्रेंड है, ऊपर हमारा फाइन ग्रेंड आया, क्योंकि यहाँ पे सी लेवल यहाँ पर था, अभी सी लेवल यहाँ पर आ गया। ये जो है, दिस इज कॉल्ड योर फेसिस। फेसिस का मतलब क्या है? फेसिस इज नथिंग बट दिस इज टर्मिनोलॉजी दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फेस। तो ये फेस को देख के तुम पता कर सकते हो कि भाई उसका तबीयत कैसा है, ठीक है, नहीं है, क्या हुआ है। अभी बहुत सारे लोगों को लास्ट देखो, RCB वालों को बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे भाई, उनकी खुशी में दिखेगी कि वो खुश हैं, RCB जीत गया, चेन्नई हार गया, ठीक है ना? जो भी है, अभी RCB टेबल टॉप में है, पता है? हाँ कि ना, कुछ तो बोलो। चलो, Yes, sir. हाँ अरे इंटरेक्शन सेशन होगा, इफ इट इज ए 2 वे कन्वर्सेशन देन दैट विल बी ओके ना। चलो, उसके बाद सिस्टम ट्रैक्ट। सिस्टम ट्रैक में मेथड्स ऑफ डेफिनेशन, हाउ वी आर डिफाइनिंग द सिस्टम ट्रैक्ट, एंड लो स्ट्रैंड सिस्टम ट्रैक LST, ट्रांसग्रेसिव सिस्टम ट्रैक TST, हाई स्ट्रैंड सिस्टम ट्रैक HST, फॉलिंग स्टेज सिस्टम ट्रैक FSST, ठीक है? रिग्रेसिव सिस्टम ट्रैक RST, ठीक है? उसके बाद सीक्वेंस मॉडल, ये सीक्वेंस मॉडल हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट TR सीक्वेंस मॉडल हम पढ़ेंगे, इसको बहुत ज़्यादा डिफाइन करेंगे। जेनेटिक स्ट्रैटिग्राफिक सीक्वेंस इज ऑल्सो देयर, डिपोजिशनल सीक्वेंस ऑल्सो देयर, सारे के सारे सेम है ओवरऑल, क्योंकि डिपोजिशन तो एक ही जगह पे हो रहा है। जो पैकेज की बात हम कर रहे हैं, दैट दिस पैकेज इज ऑलरेडी डिपोजिटेड,
Now the thing is that on which basis we are defining this to be depositional sequence or transgressive regressive sequence. तो on which basis we are defining the depositional package that defines कि ये कौन सा मॉडल होगा. मैं बोलूँगा सर ट्रांसग्रेशन और रिग्रेशन के बीच में मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो दैट विल बी ट्रांसग्रेसिव रिग्रेसिव सिस्टम ट्रैक्ट. मैं बोलूँगा नहीं सर, ये जहाँ पे डिपॉजिट हुआ था इसके बाप के हिसाब से मैं उसको कैरेक्टराइज करना चाहता हूँ, दैट विल बी जेनेटिक स्ट्रैटिग्राफिक सीक्वेंस. मतलब एक ही इवेंट में सारा का सारा डिपॉजिट हुआ है. डिपोजिशन किस बेसिस, मतलब किस हिसाब से डिपोजिशन का स्टाइल के बेसिस में आई वांट टू जस्ट मॉडल इट, देन दैट विल बी ऑन डिपोजिशनल सीक्वेंस. ठीक है. एंड देन पारा सीक्वेंसेस, दीज आर स्मॉल, ये सीक्वेंस के अंदर आता है पारा सीक्वेंसेस. ठीक है. उसके बाद देखो टाइम एट्रीब्यूट्स ऑफ स्ट्रैटिग्राफिक सरफेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, बिकॉज दीज स्ट्रैटिग्राफिक सरफेसेस आर टाइम सिंक्रोनस, दे विल बी डिफाइनिंग द ओवरऑल द टाइम. ठीक है. टाइम सिंक्रोनस. देन सोवेरियल ऑन कन्फर्मिटी मैंने बताया था, दिस इज SU. कोरिलेटिव कन्फर्मिटी, दिस इज CC. basal surface of force regression, this is BSFR, basal surface of force regression. regressive surface of marine erosion, ये तुम्हारा regressive surface है. ठीक है ना. RS ऐसा इसका कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है. मैक्सिमम रिग्रेसिव सरफेस, दिस इज MRS. मैक्सिमम फ्लोटिंग सरफेस, दिस इज MFS. अभी देखो टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से ही उसका नोमेनक्लेचर हुआ है. सो विथ रिस्पेक्ट टू द नोमेनक्लेचर वी विल ट्राई टू नो कि इसको क्यों ऐसा नाम दिया गया है. ठीक है ना. देन रिवाइनमेंट सरफेस, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैं बताया था. विद इन ट्रेड नॉर्मल, इसको छोड़ दो. ठीक है. अभी ये वाला PDF से हमारा काम खत्म हो गया. देन वी कैन मूव टू आवर स्लाइड. यस, दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन. स्ट्रैडल टर्मिनेशन में ऑन लैप, डाउन लैप, ऑफ लैप, टॉप लैप, बॉटम लैप, टॉप सेट एंड ट्रंकेशंस अवेलेबल हैं. ठीक है. अभी ऑन लैप क्या है, डाउन लैप क्या है, ऑफ लैप क्या है, टॉप लैप क्या है, बॉटम लैप क्या है, टॉप सेट क्या है. सो ये इन लोगों का इंपॉर्टेंस क्या है. इन लोगों का इंपॉर्टेंस ये है कि एक पैकेज डिपॉजिट हो गया, विद इन दिस पैकेजेस देन बहुत सारे हमें सर्फेसेस मिलेंगे, बहुत सारे सर्फेसेस मिलेंगे. देन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑन लैप और प्रेजेंस ऑफ दिस डाउन लैप, दे विल टेल कि इन व्हिच एनवायरनमेंट और व्हाट वाज द सी लेवल कंडीशन वेयर दे गॉट डिपॉजिटेड, और वेदर इट वाज ए ट्रांसग्रेसिव फेज था या फिर रिग्रेसिव फेज था या फिर फोर्स्ड रिग्रेसिव फेज था. व्हाट वाज द फेज बाय दैट टाइम व्हेन दीज थिंग्स गॉट डिपॉजिटेड. ओके. बॉटम लैप, टॉप सेट, ट्रंकेशंस, ऑफ लैप, टॉप लैप. ठीक है. नाउ दे विल टेल यू व्हाट इज द TR sequence. If I'm just trying to explain overall the sequence, whatever the sequence stratigraphic package in transgressive regressive format, then that will be my transgressive regressive system transgressive regressive sequence stratigraphy, TR sequence stratigraphy होगा. Because based on this transgression and regression I am explaining this depositional package. ठीक है ना. तो ये स्ट्रेटल टर्मिनेशन, जैसे कि मैं बोलूँगा ऑफ लैप, इफ आई एम गेटिंग वन ऑफ लैप देन दैट इज इंडिकेटिव ऑफ फोर्स रिग्रेशन. ये बाद में हम पढ़ेंगे, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. क्यों, बाद में पढ़ेंगे. ठीक है ना. सो रिग्रेसिव फोर्स रिग्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑफ लैप, ट्रांसग्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑन लैप. अभी इसको I have shown you the stratal termination diagram, but I will be explaining those things. Maybe in class, I will be explaining those things with the help of seismic traces. Reflection seismic data से कैसे use किया जा सकता है. ठीक है. I will be explaining. Then sequence stratigraphic surfaces, SU, CC, BSFR, then regressive marine erosion, MRS, MFS, and environment surface. Then system track, this is TST, LST, HST, FST, RST, I have already explained. Then this is a sequence model based upon which you will be explaining the overall the depositional package. Okay. Then अभी सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी के अंदर ही सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी आता है. ठीक है ना. सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी के अंदर ही सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी आता है. एंड दिस सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी, दिस इज वन अप्लाइड सेडिमेंटोलॉजी, अप्लाइड सेडिमेंटोलॉजी. ठीक है.
अभी सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, नेचुरल रिसोर्सेस एक्सप्लोरेशन। नेचुरल रिसोर्स में हियर इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली ऑयल एंड नेचुरल गैस। ओएनजीसी इसको बहुत काम करता है, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। उसके बाद सेडिमेंटरी पेट्रोलॉजी, देखो रॉक क्लासिफिकेशन, देन सेडिमेंटोलॉजी में टेक्सचर, स्ट्रक्चर, फ्लो रिजाइम, देन फेसिस एनालिसिस। इन दिस केस फेसिस एनालिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डिपोजिशनल सिस्टम। डिपोजिशन कैसे हुआ है, अभी जैसे कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि फेसिस क्या है। फेसिस दिस इज नथिंग बट दिस इज द फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन को देख के तुम्हें पता चलेगा कि व्हाट एक्चुअली वेदर, उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये डिपोजिशनल सिस्टम किस एनवायरनमेंट में वो डिपॉजिट हुए थे, ठीक है, क्यों ये अवेलेबल है। इफ आई विल जस्ट गेट क्ले पार्टिकल्स, सैंड सॉरी सिल्ट एंड क्ले, देन आई विल बी सिंपली टेलिंग ना दीज आर काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट में डिपॉजिट हुए होंगे। if I am getting some clastic sediments then they will be characteristic of their clastic sediments, मतलब high energy environment में होगा। I cannot expect clay particles to be deposited in tidal environment, ठीक है ना, जहां पर टाइड आता है दिस इज अ वेरी हाई एनवायरमेंट कंडीशन, सॉरी हाई एनर्जी एनवायरमेंट। तो ये हाई एनर्जी में क्ले मुझे मिलेगा ही नहीं, बिकॉज क्ले इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो एनवायरमेंट एंड की काम क्वाइट कंडीशन। लेक डिपॉजिट में, लाखों स्ट्रैंड डिपॉजिट में क्ले मिलेगा क्योंकि वहां पे सेटल डाउन होने के लिए टाइम है। हाई एनर्जी कंडीशन में सेटल डाउन होने का टाइम ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद यू विल बी कोरिलेटिंग दिस सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी एंड दिस सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी इट विल बी, सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता है। वेल लॉग्स एंड सेस्मिक डेटा, आई हैव टोल्ड यू सेस्मिक रिफ्लेक्शन डेटा, व्हाट इज दैट, सेस्मिक रिफ्लेक्शन डेटा। इन जियोफिजिक्स वी विल सी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है, सेस्मिक रिफ्लेक्शन डेटा क्या है, सेस्मिक रिफ्रैक्शन डेटा क्या है, एंड व्हाई दिस सेस्मिक रिफ्लेक्शन डेटा इज बीइंग यूटिलाइज्ड मोर एज कंपेयर्ड टू द सेस्मिक रिफ्रैक्शन डेटा, ठीक है। उसके बाद वेल लॉग, बिकॉज वेल लॉग का भी रेस्पॉन्स, वेल लॉग का रेस्पॉन्स क्या है, दीज आर रेस्पॉन्स ऑफ द सेडिमेंट्स, रेस्पॉन्स ऑफ द सबसर्फेस वेयर वी कैन नॉट गो बट आवर सोंडे कैन गो। यू नो सोंडे, सोंडे SONDAE, ये वेल लॉग में ये उसका मतलब क्या रीडिंग लेता है सोंडे, उसमें बहुत सारे सेंसर्स लगाए जाते हैं। विल बी एक्सप्लेनिंग लॉगिंग क्लास में, ये सब बताएंगे थोड़ा सोंडे वोंडे के बारे में। देन सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी को तुम को रिलेट करोगे बायोस्ट्रैटिग्राफी, मैग्नेटोस्ट्रैटिग्राफी, आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री, then global climatic change, because I have already told you that eustacy that also affects the sequence stratigraphy, ठीक है। then astronomical forcing, if I am telling you कि high tide low tide आ रहा है, all of you know that the high tide and low tide, tide का जो fluctuations है that is somehow in a particular time within a month, तो उसमें क्या होता है कि that is being affected by the moon, है ना। अभी ये अगर इफ दिस इज आवर सन, ये हमारा आ गया तुम्हारा चांद, दिस इज अगर हमारा अर्थ, अर्थ मून सन, तो इसमें ये अर्थ में इसका क्या होगा कि टाइड जो होगा, ठीक है ना, टाइड का उसका लेंथ बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलता है कभी फुल मून होता है तो मतलब इन द मेरीन केस और ओशियन में मछली मारने के लिए मत जाओ, ऐसे बोला जाता है, क्योंकि ये तो ग्रेविटेशन ही है, दिस इज द ओनली द ग्रेविटेशन दैट इज स्टिल कॉन्टैक्टिंग, दैट इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट, दैट्स व्हाई हमारा चंदा हमारे साथ ही घूम रहा है। चंदा मामा क्यों बोलते हैं पता है, चंदा मामा, ये इन दोनों का एज ओवरऑल सेम ही है, ओवरऑल सेम भाई बहन है, ठीक है। चलो ठीक है, सो ये टाइड के ऊपर भी ये जो एस्ट्रोनॉमिकल फोर्सिंग है वो भी अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद तुम बेसिन एनालिसिस में जाओगे, जियो टेक्टोनिज्म एंड जियोडायनामिक्स, जहाँ पर तुम्हारा प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, डिफरेंट डिफरेंट बेसिन आएंगे, ठीक है। देन सब्सिडेंस एनालिसिस एंड बैक स्ट्रिपिंग, बैक स्ट्रिपिंग ये जियोफिजिकल टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। सब्सिडेंस एनालिसिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अभी जो सेडिमेंट तुम्हारा डिपॉजिट होगा देन दे विल बी गेटिंग कॉम्पैक्टेड, ठीक है ना, तो वो सबसाइड होंगे, पोरोसिटी परमियाबिलिटी डिक्रीज करेगा, उनका डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम कमेगा। तो ये सब्सिडेंस एनालिसिस, एंड सब्सिडेंस एनालिसिस में तुम्हारा टेक्टोनिक फोर्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे फटाक के नीचे चला गया तो ज़्यादा सबसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। देन एक्सप्लोरेशन एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द ऑब्जेक्टिव इज पैसा, मनी,
ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्स लाएंगे, ओएनजीसी में पोस्ट निकलेगा, सब लोग ओएनजीसी जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखो, यूस्टेसी इज द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द सीक्वेंस फॉर्मेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ स्ट्रैटिग्राफिक साइक्लिसिटी। ओके, उसके बाद इसको देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसग्रेशन, रिग्रेशन, फोर्स रिग्रेशन एंड फेसेस पैटर्न। ये जो प्रोग्रेडेशन, रेट्रोग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन, दीज आर नथिंग बट टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विथ फेसिस पैटर्न्स। ठीक है, कैसे सेडिमेंट डिपॉजिट हुए हैं ऊपर नीचे, क्या क्या सेडिमेंट से, ग्रेन साइज वेरिएशंस क्या क्या है, क्या क्या सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, दीज आर द फेसिस पैटर्न, प्रोग्रेडेशन, रेट्रोग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसग्रेशन, रिग्रेशन एंड फोर्स रिग्रेशन, इसको हम देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो ये देखो ट्रांसग्रेशन, अभी ट्रांसग्रेशन के बारे में बात करेंगे। ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या है, वो ट्रांसग्रेट करेगा, ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है ना, ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन। तो ओवरऑल, ओवरऑल तुम्हारा सी लेवल बढ़ रहा है, ऐसे इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आई कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसग्रेशन इन द वे दैट सी लेवल राइज को लेके मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, इफ सी लेवल इज राइजिंग, ठीक है ना, इफ सी लेवल इज राइजिंग, यू कैन सी यहाँ पर था, धीरे धीरे ऊपर चला गया सी लेवल। सी लेवल अगर राइज कर रहा है, सो दिस इज माई सोर लाइन। इसको अगर 3D में बनाएंगे, ये मेरा सोर लाइन होगा ना, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि सोर लाइन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन लैंड पार्ट, बोल सकते हैं। ठीक है ना, बोल सकते हैं कि नहीं, बताओ यार। यस सर। देखो, तो इसमें ट्रांसग्रेशन जहां पर हो रहा है, और जो ये क्या बोलते हैं, ये जो सोर लाइन लैंडवर्ड शिफ्ट कर रहा है, तो ये ऐसे मैं बोल सकूंगा, इन ट्रांसग्रेशन और ड्यूरिंग ट्रांसग्रेशन हमारा सोर लाइन शिफ्ट्स टुवर्ड्स लैंड। और ऐसे हम बोल सकता हूँ दैट सोर लाइन्स गोज अवे फ्रॉम द ओशियन और वाटर, और ओशियन मरीन से दूर जाता है, ऐसे भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ये देखो ट्रांसग्रेशन, अभी ये ट्रांसग्रेशन अगर हो रहा है, इन दिस केस व्हाट इट इज गिवन, यहाँ पर देखो दिस इज क्लास्टिक सेडिमेंट्स। ठीक है, फोरशोर में डिपॉजिट है, सोरफेस में डिपॉजिट है, ऑफशोर ट्रांजिशन, ऑफशोर इसमें डिपोजिशन है, तो ये रिलेटिवली लो एनर्जी कंडीशन फाइन ग्रेन डिपॉजिट्स यहाँ पर होगा। यहाँ पर कोर्स ग्रेन है, क्लास्टिक सेडिमेंट्स होगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो ये पुराना वाला है, ठीक है, इसके ऊपर देखो ये आ गया तुम्हारा अभी, बिकॉज द सी लेवल इज राइजिंग, दैट इज ट्रांसलेशन इज हैपनिंग। उसके बाद फिर से इंक्रीज हो गया, क्योंकि सी लेवल राइज ऐसे तो अचानक से नहीं 10 मीटर बढ़ जाएगा, धीरे 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 इट विल इंक्रीज। ठीक है ना, तो ऐसे ऊपर 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 जा रहा है, फेसिस शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लैंड पार्ट। फेसिस पैटर्न क्या है, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेडेशनल। तो ट्रांसग्रेशन में रेट्रोग्रेडेशन होगा। रेट्रोग्रेडेशन इज व्हाट इज, दिस इज द फेसिस पैटर्न। ठीक है, अभी चीजें क्या याद रखनी है, ट्रांसग्रेशन में होता क्या है, ट्रांसग्रेशन में सी लेवल राइज होता है, ट्रांसग्रेशन में हमारा फेसिस पैटर्न रेट्रोग्रेडेशनल होता है, ट्रांसग्रेशन में हमारा शोर लाइन लैंडवर्ड शिफ्ट करता है, नाउ माई शोर लाइन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लैंड, और फेसिस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लैंड पार्ट, ऐसे हम बोल सकते हैं। इफ हम ये बोल रहे हैं, तो यहां पर देखो, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट, यहाँ पे एक मुझे कोर लेना है, यहाँ पर अगर मुझे कोर लेना है, तो यहाँ पर कोर्स ग्रेन्ड है, इसके ऊपर फाइन है, उसके ऊपर और फाइन है, ठीक है ना, ये कोर्स है, उसके बाद फाइन है, उसके बाद फाइन है। तो यहाँ पे ओवरऑल मेरा ग्रेन साइज वेरिएशन ऊपर तक कैसा हो रहा है, फाइनिंग अपवर्ड सीक्वेंस हो रहा है ना, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर ये पॉइंट लिख लो, मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ
you will be very much benefited. ट्रांसग्रेशन में तुम्हारा शोर लाइन शिफ्ट करता है लैंडवर्ड शिफ्ट, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ट्रांसग्रेशन में फेसिस पैटर्न रेट्रोग्रेडेशनल होता है, रेट्रोग्रेडेशनल फेसिस पैटर्न, ठीक है। एंड ट्रांसग्रेशन में फाइनिंग ऑफवर्ड सीक्वेंस होता है, ठीक है ना, फाइनिंग ऑफवर्ड सीक्वेंस। दीज आर द थिंग्स एसोसिएटेड विथ ट्रांसग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रांसग्रेशन, रेट्रोग्रेडेशनल पैटर्न, फाइनिंग अपवर्ड सीक्वेंस, दिस इज द आउटकम ऑफ दिस स्लाइड, ठीक है। दिस इज ट्रांसग्रेशन, हो गया। इसको नोट कर लो, जो लोग थोड़ा सिंसियर हो इसको नोट कर लो। उसके बाद आ गया रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होगा? रिग्रेशन में तुम्हारा ये ऊपर था, ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। फेसिस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ओशन और द वाटर। सी लेवल इज फॉलिंग डाउन, यहाँ पर देखो सी लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा है, यहाँ था फिर से नीचे फिर से नीचे, ठीक है ना। इन दिस केस यू कैन सी, यहाँ पर देखो फाइन ग्रेन्ड, फिर से कोर्स, फिर से और ज़्यादा कोर्स। तो दिस इज कोर्सनिंग अपवर्ड सीक्वेंस बना रहा है, दिस इज द सीक्वेंस कोर्सनिंग अपवर्ड सीक्वेंस। एंड ये जो शिफ्ट हो रहा है, ये जो तुम्हारा सोर लाइन है, नाउ दिस सोर लाइन इज, यहाँ पर देखो सोर लाइन यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। सोर लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सी, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सी। तो सोर लाइन इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड योर प्रोग्रेडेशनल। Progradation, retrogradation, it is overall the phases pattern, or you can simply say it is the overall direction of the movement of your soar line. If it is moving towards the ocean, that is called your progradation. If it is moving away from the soar line sea, then that is called your retrogradation. Or if it is moving towards the land part, then that is called your retrogradation. तो यहाँ पर रिग्रेशन में क्या हो रहा है? पहले तो कोर्सनिंग अपवर्ड हो गया। कोर्सनिंग यहाँ पर देखो, ये फाइन ग्रेन है, उसके बाद बड़ा बड़ा ग्रेन होगा, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इसको बोलते हैं फेसिस शैलोज ऑफ, इसको बोलते हैं शैलोज ऑफ बोलते हैं। और दिस इज कोर्सनिंग अपवर्ड, ठीक है। एंड दिस रिग्रेशन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच टाइप ऑफ फेसिस पैटर्न? दिस इज प्रोग्रेडेशन, ठीक है। अभी देखो इसमें आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऐसे मैं याद करता हूं, पीसी प्रोग्रेडेशन कोर्सनिंग अपवर्ड। एंड ये जो पीसी, ये एक ऐसा फॉर्मूला है, इसको मैं स्ट्रैटिग्राफी में भी यूज करता हूं, पैलेंटोलॉजी में भी यूज करता हूं। इसमें है कुछ चीजें हैं जो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आई विल बी एक्सप्लेनिंग। कोनोडोंट के नाम सुनते हो? कोनोडोंट, कोनोडोंट ये हाइड्रोकार्बन मैच्योरिटी बताने के लिए एक इंडेक्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। कोनोडोंट का कलर, ठीक है। ये कोनोडोंट का कंपोजिशन फॉस्फेटिक होता है, फॉस्फेट। तो फॉस्फेटिक में कोनोडोंट आ गया। प्रोग्रेडेशन कोर्सनिंग अपवर्ड, देखो दो फॉर्मूला बता दिया, बाकी हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो दिस इज योर रिग्रेशन। देखो ये चीज़ को इजीली मत लेना, टेक दिस थिंग्स सीरियसली बिकॉज दीज आर द बेसिक्स। प्रोग्रेडेशन, रेट्रोग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फोर्स्ड रिग्रेशन। फोर्स्ड रिग्रेशन का मतलब क्या है? फोर्स्ड रिग्रेशन का मतलब क्या है? फोर्स्ड रिग्रेशन का मतलब है दे आर फोर्स्ड टू रिग्रेस। रिग्रेशन मतलब सी वर्ड मूवमेंट होगा तुम्हारा सोल लाइन का। अभी ये जो मूवमेंट होगा वो चाहता नहीं है मैं मूव करूं, हम उसको जबरदस्ती करवा रहे हैं, भाई तुझे जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू इट, देन दैट इज कॉल्ड योर फोर्स्ड रिग्रेशन। फोर्स्ड रिग्रेशन में भी ऐसे होता है। फोर्स्ड रिग्रेशन में फेसिस शैलो ऑफ होता है, फेसिस पैटर्न प्रोग्रेशनल होता है, ठीक है, कोर्सनिंग अपवर्ड होता है, सेम। बट फोर्स्ड रिग्रेशन में वहाँ पे फोर्स्ड किया जाता है रिग्रेट करने के लिए और रिग्रेस करने के लिए। दो इट इज सी लेवल अगर राइज भी कर रहा है उस टाइम में, तो उसको फोर्स किया जाएगा, भाई तुझे नीचे जाना पड़ेगा। अभी नीचे कैसे फोर्स किया जाता है?
ड्यू टू सम टेक्टोनिक एक्टिविटी में भी हो सकता है, टेक्टोनिक सब्सिडेंस हो सकता है, so that they are forced to regress, that is called your forced regression. ठीक है, टर्मिनोलॉजी के साथ जाना है. उसके बाद क्या होगा, शोरलाइन कांस्टेंट. अगर शोरलाइन कांस्टेंट है, ओवरऑल तुम्हारा सेडिमेंटेशन रेट भी सेम है, सेडिमेंट इनफ्लो भी सेम है, सी लेवल का राइज भी उतना ही है. देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इफ आई एम टेकिंग ए कोर हियर, मुझे सैंड 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 ही मिलेगा. तो इसको बोलते हैं एग्रेडेशनल फेसिस पैटर्न. प्रोग्रेडेशन, रेट्रोग्रेडेशन. एग्रेडेशन मतलब वो स्टैटिक है, ना ही आगे जा रहा है ना ही पीछे जा रहा है. दिस इज योर प्रोग्रेडेशन, दिस इज योर रेट्रोग्रेडेशन, एंड ये हो गया तुम्हारा एग्रेडेशन, जिसमें ना ही आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा है, फेसिस इज कांस्टेंट. ठीक है, आगे चलते हैं. देन ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसी डायग्राम के बेसिस में ही सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी पूरा एक्सप्लेन किया गया है. दिस इज, यू कैन सी, दिस इज द बेस लेवल चेंज, बेस लेवल चेंजेस, और दिस इज द रेट ऑफ बेस लेवल चेंज. अभी ये जो बेस लेवल चेंज है, ये सिर्फ और सिर्फ ओशियन का और जो मीन सी लेवल और सी लेवल को दर्शा रहा है, बट यू कैन सी द रेट ऑफ बेस लेवल चेंज में सेडिमेंटेशन रेट इज देयर, सेडिमेंटेशन रेट को कंसिडर किया जाता है. तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर देखो इसका ट्रॉ अलग अलग है. ठीक है ना, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, एंड देन वी विल सम अप दिस क्लास. ओके, दिस इज योर हाई स्टैंड सिस्टम ट्रैक, HST. देखो यहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम जो तुम्हारा सी लेवल है, दिस इज द मैक्सिमम, है ना. दिस इज HST, हाई स्टैंड सिस्टम ट्रैक्ट. ठीक है, अभी हाई स्टैंड सिस्टम ट्रैक्ट में देखो ये तुम्हारा ओवरऑल बेस लेवल नीचे जा रहा है. इफ इट इज गोइंग नीचे, दैट इंप्लाइज यहाँ पे रिग्रेशन होगा. यू कैन सी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन. वहां पे रिग्रेशन हो रहा है, क्योंकि देखो ये ओवरऑल नीचे ही जा रहा है. नाउ दो इट इज कमिंग अप, ये ऊपर आ रहा है, तब भी ये इसके नीचे ही है. यहाँ पर देखो नीचे है, ये ऊपर जा रहा है. सो हियर टिल दिस पॉइंट रिग्रेशन होता है, क्योंकि सेडिमेंटेशन इज टेकन सेडिमेंटेशन हैज बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो यहाँ पर रिग्रेशन होता है. तो नॉर्मल रिग्रेशन होता है या फिर फोर्स रिग्रेशन होता है, उसको देखेंगे. देखो यहाँ पर HST, हाई स्टैंड सिस्टम ट्रैक्ट. उसके बाद नाउ द सी लेवल इज फॉलिंग, सी लेवल इज फॉलिंग, सी लेवल इज फॉलिंग, सी लेवल इज फॉलिंग. Though it is falling, then this is called your FSST, falling stage system tract. ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर फॉलिंग स्टेज सिस्टम ट्रैक्ट. उसके बाद दो इट इज इंक्रीजिंग, स्टिल ये क्या कर रहे हैं, अभी नीचे है. तो दिस इज कॉल्ड ईयर, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड योर LST, लो स्टैंड सिस्टम. दिस इज द अल्टीमेट लो. ये सबसे ऊंचा है, सी लेवल सबसे ज्यादा है, और ये सबसे नीचे है. दिस इज लो स्टैंड सिस्टम ट्रैक्ट. तो यहाँ पे भी रिग्रेशन होता है, क्यों बताएंगे. ठीक है, उसके बाद देखो धीरे यहाँ से सेडिमेंट से ये देखो ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है. ठीक है, नाउ इट इज गोइंग, इट इज ऑल्सो गोइंग, इट इज स्टिल, देखो सेडिमेंटेशन रेट के ऊपर ही है. दैट इंप्लाइज इट विल इंक्रीज एंड इंक्रीज दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट. दिस इज कॉल्ड योर ट्रांसग्रेसिव सिस्टम ट्रैक, TST, क्योंकि यहाँ पे सी लेवल इंक्रीज हो रहा है. दिस इज ट्रांसग्रेसिव सिस्टम ट्रैक. उसके बाद फिर से देखो यहाँ से फिर से सी लेवल ऊपर आ गया, फिर से ये HST है, हाई स्टैंड सिस्टम ट्रैक. तो ये देखो TST, ट्रांसग्रेसिव सिस्टम ट्रैक्ट, इतने ही एरिया में है. तो कैन आई जस्ट सिंपली से, कैन आई जस्ट सिंपली से दैट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम HST टू एंड ऑफ LST, दिस इज द ओवरऑल रिग्रेशन स्टेज, and this is the time span of transgressive system tract. Transgression हो रहा है. Can I just simply say that this TST or transgressive system tract is for a very short period as compared to the regression. Normal regression, forced regression छोड़ दो, but overall the regressive phase is much larger than the transgressive phase. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इफ दिस ट्रांसग्रेसिव सिस्टम ट्रैक और द ट्रांसग्रेसिव फेज is for a very short period, then
the preservation potential of this TST would be smaller. The preservation potential of the TST will be small. Am I correct? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पता नहीं, बताओ सुनील. हो सकता है सर. वेरी गुड, ऐसे बताओ. ओनली 6 स्टूडेंट्स, क्या बात. चलो कोई दिक्कत नहीं, हम तो हमारा काम करेंगे. ठीक है, तो दिस मच फॉर दिस सेशन. उसके बाद आगे आई जस्ट वांटेड कि इसको थोड़ा बताएंगे. देखो कोरिलेटिव कन्फर्मिटी, यहाँ पर देखो क्वेश्चनिंग अपवर्ड, इफ यू फाइंडिंग अपवर्ड, क्वेश्चनिंग अपवर्ड, टीएसटी, यहाँ पर सीसी कोरिलेटिव कन्फर्मिटी, एमआरएस मैक्सिमम रिग्रेसिव सरफेस, मैक्सिमम फ्लोटिंग सरफेस, ठीक है ना, आरएसटी, टीएसटी, आरएसटी. तो ये सब चीज़ें कवर अप बाद में इन क्लास ओवर अप किया जाएगा. बिकॉज आई थिंक इट हैज़ ऑलरेडी बिन, कितना टाइम हो गया, 9:51. इट इज़ मोर देन 1 hour I think. So this is all for today's session, and I think I have made myself clear through my lectures, and I think you would have get something out of this session. So thank you very much. And if you have any kind of doubt, then we can have a conversation right now. Okay, so thank you very much.